Good morning, student. So, welcome in today's topic. Today's topic about hierarchy of classification. In yesterday period, we have discussed about hierarchy of classification, basically classification and evolution. And in this system, you have read hierarchy of classification. Just a minute. Hello student. So hierarchy of classification. Yesterday we have discussed hierarchy of classification. The main points of last topic was five kingdom system, and you have read about further classifications just like subgroup in at various level. You have read about class, you have read about order, family, genus, species. Then after that what is species you discuss, because species is a basic unit of classification. So then we will start five kingdom system. So first kingdom is Monera. In Monera you have read about Monera. It is called as kingdom of prokaryotes. Second kingdom, it is Protista or unicellular eukaryotes. You have discussed this one also. Then third kingdom is fungi. So we will discuss detail or key points of five kingdom system. So first one, Monera. Again I will repeat it. Monera. What is the classification? What is the characteristic feature of Monera, and how many examples are given there? So Monera is a no defined nucleus or organelles. It is Monera means kingdom of prokaryota. Nucleus is primitive. Cell wall present. If cell wall is present, it is plants. Cell wall not present, it is animal. Then we have read heterotropic mode of nutrition. So Monera, the some organisms of Monera are heterotypes mode of nutrition, and some plants is also there that are autotrophs. So organisms of Monera may be heterotrophs or may be autotrophs. There are some examples we have given there. Bacteria or Anivina, it is the examples of Monera. Then Protista. Protista is called as unicellular eukaryotes. Unicellular eukaryotes means organisms are mostly unicellular, and nucleus is well defined and with their envelope. So unicellular primitive nucleus is this is unicellular, and Protista group is eukaryotic. Some of organisms use appendages. There are some appendages are present there. We have discussed in previous class. These are appendages. It is present in form of cilia, and euglena appendages is present in form of flagella. So this is the appendages which is present in unicellular organisms, and these are the examples of Protista. So now third one is uh, kingdom fungi. So today our topic is kingdom fungi. So we will start from fungi. Fungi is a kingdom of multicellular decomposers. Fungi का basically ये क्या है? It is kingdom of multicellular decomposers. Now we will understood this term, student. Multicellular is means when animal body or organisms are made up of many cells. It is multicellular. Decomposers means a mode of nutrition is decomposers type. Means organisms take their food from the किससे ले रहा है? It take their food from the saprophytes or decaying organic matter. Means organisms food किससे ले रहा है? Decaying organic matter. Understood, student?
material or understand students what is the meaning of this thing? Decomposers are many type of microorganisms of fungi which take their food from decaying organic material. Decaying organic material से their food लेते हैं. So decomposers is also called as saprophytes. तो decomposers का name क्या है? Saprophyte means हम लोगों ने स्टार्टिंग में रीड किया था कि जो 5 किंगडम सिस्टम है, कुछ बेसिक उसमें पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर 5 किंगडम सिस्टम हुआ था. उसमें एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हम लोगों ने लिया था. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या? तो उसमें हम लोगों ने कीमोसिंथेसिस, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, फिर हिट्रोट्रॉफिक. हिट्रोट्रॉफिक में भी सैप्रोफाइट, सो मैनी टाइप्स ऑफ हिट्रोट्रॉफिक. तो फंगी जो है एक डिकम्पोजर्स और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है. इट इज़ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉप्स. ये क्या है? हेट्रोट्रॉपिक. क्लियर स्टूडेंट? सो फंगी, ये फर्स्ट मेन पॉइंट है फंगी का कि ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेलुलर एंड डिकम्पोजर्स. मीन्स so many organisms or most of the organisms get or obtain their food from the decaying organic material. It is called as decomposers. Clear? They use decaying organic material as a food, or they are known as saprophytes. Many of them have a capacity to become multicellular organisms at certain stage in their lives. मतलब क्या है कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल में और लाइफ स्पान में बहुत इनमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कई स्टेज को क्रॉस करते हैं. ठीक है, मल्टी स्टेज को ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये अपनी लाइव्स में शो करते हैं. दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ टफ शुगर. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देयर आर plant cell made up of cellulose. ठीक है, और फंगल सेल मेड अप ऑफ किससे बनी है? काइटिन. CHITIN, काइटिन. क्लियर? ये काइटिन क्या है? ये बहुत टफ कॉम्प्लेक्स शुगर है. इट इज टाइप ऑफ शुगर. काइटिन क्या है? इट इज टाइप ऑफ शुगर. एग्जाम्पल्स आर ईस्ट एंड मशरूम. एग्जाम्पल्स इसके क्या है? ईस्ट एंड मशरूम. किंगडम फंगी इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव absorptive mode of nutrition. It is characteristics by the following feature. मतलब ये एब्सॉर्ब करता है. तो ये डिकेइंग मटेरियल से सैप्रोफाइट नेचर का डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल फूड लेता है. कैसे? बाय absorbing mode of nutrition. एब्सॉर्ब करता है. ठीक है, न्यूट्रिशंस. क्लियर स्टूडेंट? डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड को सिंपलर फॉर्म में करेगा, फिर उसको एब्सॉर्ब करेगा. एब्सॉर्ब मतलब उसको क्या करना? एक प्रकार से सोखना, जैसे जिसको कहते हैं एब्सॉर्ब करना. जैसे आप किसी गीली जगह पर कोई स्पंज डाल दो तो गीली जगह का जितना वाटर स्पंज उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं ना. दिस इज कॉल्ड एज एब्सॉर्बिंग. तो एब्सॉर्बिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉलोइंग फीचर. The body of fungus is filamentous. This is examples of some plants body. It is कैसी है? ये किसके शेप में है? ये filamentous. ठीक है स्टूडेंट, filamentous शेप में है and it is called as mycelium. क्या कहेंगे इसको हम? mycelium. Important point. Where mycelium is present? Mycelium present in fungi. जो इसकी प्लांट बॉडी है वो बहुत डेवलप तो नहीं होती है, वो एक फिलामेंटस फॉर्म पर होती है. इट इज़ कॉल्ड एज माइसीलियम. द फिलामेंटस इज नोन एज हाइफे.
द हाइफे आर, अब ये जो माइसीलियम है ना, माइसीलियम इट इज कॉल्ड एज माइसीलियम फिलामेंटस आर नोन एज, जो इसका फिलामेंटस बॉडी है बेसिकली इट इज हाइफे. द हाइफे आर आइदर मल्टीसेलुलर और मल्टीन्यूक्लिएटेड और यून्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स. ये जो इसकी प्लांट बॉडी है ये माइसीलियम, ये बेसिकली क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये मल्टीसेलुलर है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है. सेकंड, सेल आर कवर्ड विद आउटसाइड बाय सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन. या अभी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसकी जो सेल वॉल है किससे बनी हुई है, काइटिन से. क्लियर स्टूडेंट, सेल वॉल किससे बनी हुई है, काइटिन से. इट इज टफ शुगर, ये क्या होती है, ये टफ शुगर है. काइटिन क्या है, एक टफ शुगर है. ठीक है, जबकि जो प्लांट बॉडी है वो सेल्यूलोज से बनी है. द हाइफे और ए क्लोरोफिलस डू नॉट, और ये काइटिन बनी है मीन्स बॉडी इज सेल बॉडी इज विदाउट माइसीलियम. कैसे, माइसीलियम की सेल कैसे है, इट इज विदाउट, माइसीलियम की सेल बॉडी विदाउट क्लोरोफिल मीन्स क्लोरोफिल नहीं होता है. क्या है, क्लोरोफिल आर एब्सेंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट, सो दिस इज द मेन पॉइंट, क्लोरोफिल आर एब्सेंट. क्लियर, सो दिस इज कॉल्ड एज ए क्लोरोफिलस. ये माइसीलियम क्या है, ए क्लोरोफिलस मीन्स इसमें क्लोरोफिल नहीं है, डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. दे आर हिट्रोट्रॉपिक, हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, डिकम्पोजर से ले रहा है, तो हिट्रोट्रॉपिक इन नेचर, आइदर इज सैप्रोफाइट्स और इट मे बी पैरासाइट. हिट्रोट्रॉप्स में दो टाइप के न्यूट्रिशंस हैं, सैप्रोफाइट और पैरासाइट. तो फंगी जो है सैप्रोफाइट भी हो सकता है और पैरासाइट भी हो सकता है. तो दिस इज द एग्जाम्पल्स एस्पेरेगिलस, पैरामीशियम और एगेरिकस. एगेरिकस मीन्स मशरूम्स, जो मशरूम्स आप लोग खाते हो ना, दिस इज द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स कम इन फंगी. और ये इसमें क्लोरोफिल नहीं है, अपना इसका जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज हेट्रोट्रॉप्स. किंगडम फंगी इंक्लूड्स म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम और एगेरिकस. ठीक है, और एस्परजिलस. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं. यू जस्ट मेक द डायग्राम ऑफ दीज एग्जाम्पल्स एंड लर्न कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द किंगडम फंगी. नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड आता है किंगडम प्लांटी. अब थर्ड क्या आया, किंगडम प्लांटी और किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर प्रोसीजर्स. ये किस में इंक्लूड किया है, किंगडम ऑफ multicellular procedures. Multicellular procedures, not procedure beta, it is producer. It is include in producer. Multicellular producer, produce करने वाला. Producer means produce करने वाला. All green plants are producer. तो this kingdom is also called as multicellular producer. Clear student? Kingdom plantae include all eukaryotic multicellular organisms having photosynthetic So student, we have discussed about plantae or kingdom of multicellular producer. Multicellular producer, what is the meaning of multicellular producer? कि जब प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और दीज आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. प्लांट में जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं.
ठीक है, दीज आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट विथ सेल वॉल। मेन इसका फीचर क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट है। और अब आपको ये भी पता होगा कि सेल वॉल किससे बनी हुई है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो प्रोड्यूसर है तो ऑलरेडी आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि सेल वॉल सेल्यूलोज से ही बनी होनी चाहिए। तो सेल्यूलोज मतलब सेल्यूलोज की है तो वो प्रोड्यूसर है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर ऑटो प्रोड्यूसर है तो वो ऑटोट्रॉप्स है। यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, दस ऑल प्लांट्स आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप। जितने भी प्लांट्स वो इस ग्रुप में इंक्लूड किए गए हैं। सिंस प्लांट्स एंड एनिमल आर मोर विजिबल फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अराउंड अस, मीन्स क्या दिस लाइन स्टेट दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स, millions of life forms which are very very visible and we can see around us. They may be plants or they may be animal. तो plants जितने भी हम life forms अपने चारों तरफ देखते हैं वो ज़्यादातर plants और animals के हैं। तो ये plant ही है। इसके अलावा इसको भी आगे कई वो उसमें डिफाइन किया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांट्स को डिफाइन किया हुआ है। देन इसके बाद आता है एनिमिलिया। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस एनिमिलिया, फिर हम किंगडम प्लांट्स को थोड़ा डिटेल में रीड करेंगे। पहले फर्स्ट हम लोग एनिमिलिया को रीड कर लेते हैं। एनिमिलिया क्या है? इट्स इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट सेल। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या आ गया? विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल किसका? एनिमिलिया के ऑर्गेनिजम्स की ये स्पेशलिटी होगी। विदाउट सेल वॉल, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है। और थर्ड यूकैरियोट्स, कैरियोट, ठीक है। देन फोर्थ वन, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। अब एक स्टूडेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा कंसर्न करने वाली बात है जिसको कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हम लोगों ने जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशंस में क्लासिफिकेशन के 3 बेसिस रीड किए थे। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल, ठीक है। सेकंड हमने क्या रीड किया था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और थर्ड रीड किया था सेल, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। क्लियर स्टूडेंट? इन तीनों 3 पॉइंट्स, और इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दो, बट बेसिकली 3 पॉइंट थे। इन 3 पॉइंट्स में पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम था। तो एनिमिलिया इट इज़ द टॉप मोस्ट एडवांस्ड किंगडम ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। तो इसमें देखो टाइप ऑफ सेल में ले लिया है, क्या है? यूकैरियोटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप्स, सेल मल्टीसेलुलर, और विदाउट सेल वॉल इट मीन्स इट इज़ एनिमल, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स के बेस पे ही क्लासिफिकेशन है। और जो हमारे एनिमिलिया के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि एनिमिलिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे विच आर विदाउट सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल नहीं है, मीन्स वो एनिमल सेल के हैं। मल्टीसेलुलर, यूसेलुलर इसमें एक भी नहीं आएंगे। यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स मतलब कि वेल डेवलप्ड सेल। थर्ड वन हेट्रोट्रॉप्स, मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप्स, इसका मतलब ये है दे गेट देयर फूड फ्रॉम द others organisms. So these are the animals. So student, here today we will finish today's lecture. Now next lecture we will discuss classification of kingdom plants in so